Welcome to Sanskar EduTech. I, Assistant Professor Priyanka Yadav, at DTSS College of Commerce, will be teaching you the concept of marketing mix. So, what topic we are going to cover today? Today, we are going to talk about introduction to marketing, marketing mix. Under marketing mix, we are going to talk about meaning and definition. Most important, we are going to talk about 4 pieces of marketing mix, that is product, price, place, and promotion. Before starting with the marketing mix, let's understand the meaning of marketing. Definition. Father of marketing, everybody knows, that is Philip Kotler. He defines marketing as the science and the art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of the target market at a profit. Now over here, Philip Kotler says that marketing is nothing but a combination of science and art of exploring, creating and delivering. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं. After exploring the market, we are what? We are creating the product. Now product will be created according to the demand of the customer. After creating the product, we are going to deliver this product to the market at a value, that is, we are going to decide the price of the product. Now why we are doing all this? To satisfy the need of the target market, ताकि हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. लेकिन ये सेटिस्फाई करने के लिए एट द एंड कंपनीज को क्या करना है, प्रॉफिट के बारे में सोचना है. तो एट द एंड टारगेट मार्केट को जब हम उनके नीड सेटिस्फाइड करेंगे, कंपनी को ये भी देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर होना चाहिए. So marketing management, again Philip Kotler in his book 2013 editions define marketing management is the art and science of choosing target market. वो क्या बोल रहा है, marketing management क्या है, जहां पे एक आर्ट और साइंस को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, टारगेट मार्केट को चूज कर रहे हैं. एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट लेकर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, गेटिंग द कस्टमर्स. अब कीपिंग द कस्टमर्स, कीपिंग द कस्टमर्स का मतलब जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं. रिटेन का मतलब क्या होता है, उनके नीड्स को एवरी टाइम सेटिस्फाई करने के बाद वही प्रोडक्ट्स उनको दो जिनका उनको जरूरत है, तो ही आपके कस्टमर आपके पास रिटेन रहेंगे. आफ्टर दैट ग्रोइंग कस्टमर, अब एक मार्केट हमने कवर कर लिया, अब हमको क्या करना है, अलग अलग मार्केट को भी कवर करना है, ताकि जितना ज्यादा मार्केट आप कवर करोगे उतने ज्यादा कस्टमर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे. अब ये करेंगे कैसे, सो थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज. तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करना है. डिलीवर करने के बाद हमको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करना है. अभी कम्युनिकेट करेंगे कैसे, तो यहाँ पर आता है तुम्हारा प्रमोशन टूल्स, ताकि हम अपने कस्टमर्स को उनके सुपीरियर वैल्यूज दे सके. नाउ व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? सो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली 4 पीस से बनता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स. So marketing mix refers to the marketing variables that combines to sell a product to the target market. तो marketing mix क्या होता है, जहां पे हम सारे marketing variables को combine करते हैं ताकि हम अपने products को target market में sell कर सकें. In 1960, E. Jerome McCarthy in his book Basic Marketing popularized a 4 classification that so-called product, price, place and promotion. Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. So over again, Philip Kotler says that marketing is nothing but a set of marketing tools जो कंपनी यूज करती है ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स को परस्यू कर सके एक टारगेट मार्केट के अंदर. सो आज हम 4 पीस में से फर्स्ट पी के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? Product is anything that is offered to the market for attention, acquisition and consumption that can satisfy a need or a want. तो प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसी चीज होती है जो हम क्या करते हैं, मार्केट में ऑफर करते हैं. ऑफर करने का मतलब हम उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं ताकि हम कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सके. अब अटेंशन ग्रैब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट में पैकेजिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, उसके कलर फीचर्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे ताकि कस्टमर का अटेंशन हमारे प्रोडक्ट्स के पास आ सके. एक बार अटेंशन आ गया, ग्रैब कर लिया हमने कस्टमर्स का, अब प्रोडक्ट
कस्टमर क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो मतलब अब कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को एक्विजिशन कर लिया, एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने के बाद, खरीदने के बाद वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। दैट यूज इज नथिंग बट द कंजम्पशन। अब ये क्यों कर रहा है, ताकि उनके नीड्स और वांट्स क्या कर सके, कस्टमर यहाँ पर सेटिस्फाई कर सके। अब प्रोडक्ट कैन बी आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन जनरेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हमेशा हमको प्रोडक्ट, जब भी ये वर्ड सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मतलब कोई एक चीज ही होगा जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट बेसिकली प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट एक नॉर्मल आइडिया हो सकती है, एक नॉर्मल गुड हो सकता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, या फिर वो एक टेंजिबल चीज हो सकती है जैसे कि आपकी सर्विसेज होगी। राइट नाउ कंपनी जब भी ये प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट में, तो सेल करने के लिए कंपनी को स्ट्रैटेजी यूज करती है। तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पे कंपनी हमेशा दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेगी। तो प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आते हैं अलग दो टाइप के स्ट्रैटेजीज। पहला होता है सिंगल ब्रांड और दूसरा होता है मल्टी ब्रांड। सो पहले ब्रांड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी? One single brand is offered to the target market. Now, as the name suggests, single. Single का मतलब क्या होता है? One. तो आप क्या कर रहे हो, एक ही ब्रांड नेम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को जब आप सेल करते हो उसको बोला जाता है सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बारे में। सो पहला एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव टेकन दैट इज एप्पल। नाउ वी नो दैट एप्पल फोन, एप्पल लैपटॉप जिसको हम लोग मैकबुक बोलते हैं, है ना। तो आपके एप्पल प्रिंटर्स हो जाएंगे, आपके एप्पल चार्जिंग्स, व्हाट्सएवर यू आर यूजिंग अबाउट एप्पल फोन, वो अपने एप्पल ब्रांड नेम के अंदर ही उन सारे प्रोडक्ट्स को बेचता है, वो यूज करता है सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अमूल, अ वेरी फेमस, एवरीबडी ईट्स अमूल बटर, घी एंड एवरीथिंग। तो अमूल वो उसका ब्रांड नेम हो जाएगा। उसी ब्रांड नेम के अंदर जब वो अमूल घी भी बेच रहा है, अमूल बटर मिल्क, अमूल लेट्स से जितने भी अमूल के प्रोडक्ट्स है वो एक ही सिंगल ब्रांड नेम के अंदर बेचता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। नाउ सेकंड स्ट्रैटेजी दैट इज मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी ब्रांड? मल्टी जैसे कि नाम से ही पता चलेगा, अलग अलग। तो द कंपनी ऑफर 2 और मोर ब्रांड्स। तो अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है लेकिन अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर, टू सेटिस्फाई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। अब यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, जो मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजीज होती है वो हमेशा मार्केट सेगमेंटाइजेशन के हिसाब से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सो ओवर हियर यू कैन सी HUL कंपनी, सबको पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाउ टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट सेज डव ऑल्सो, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, है ना। लाइफ बॉय भी बेच रहा है, सनसिल्क भी है, राइट, वेस्लिन भी है। अलग अलग प्रोडक्ट्स है और इनके नाम भी क्या है, अलग अलग नाम हो गए, तो अलग अलग ब्रांड नेम हो गए, इसको बोला जाता है मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। लेट्स टॉक वन मोर एग्जांपल, पेप्सी। तो पेप्सी कंपनी, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना। 7 अप देख रहे हो यहाँ पर आप लोग, फिर यू कैन टॉक अबाउट मिरिंडा, यू कैन टॉक अबाउट लेट्स से वाटर, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, अलग अलग कस्टमर के नीड्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाया और उनका नाम भी उन्होंने अलग अलग रखा है, इसको बोला जाता है मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। ना जब भी ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद, जब इसको हम लोग स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करने के बाद जब हम इसको मार्केट में निकालते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? प्रोडक्ट लाइन इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ कंपनी क्रिएट्स अंडर अ सिंगल ब्रांड। एक ही ब्रांड के अंदर आप क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक लाइन में लेकर आ रहे हो। एज सिंपल एज दैट, इतना समझो। The products are similar and focus on the same market segment, है ना। सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए और सिंगल सेम मार्केट सेक्टर्स में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेल करते हैं। मे बी देयर फंक्शंस और चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस आर द सेम और सिमिलर। हो सकता है कि वो चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशंस यूज कर रहे हैं वो सेम भी हो सकता है और मे बी वो डिफरेंट भी हो सकता है। Perhaps their physical attributes, price, quality और type of customers are the same। अब यहाँ पे जब हम उनके प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे या टाइप ऑफ कस्टमर के बारे में बात करेंगे, वो सब कुछ सेम हो सकता है। We call the activity product lining। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। Now प्रोडक्ट लाइनिंग को भी डिफाइन करने के लिए अगेन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन। एक होता है कोर प्रोडक्ट लाइन, दूसरा होता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। Now what do you mean by core product line? A company focuses on a single product line, ठीक है। यहाँ पे कंपनी एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स बेचेगा,
यहाँ पे कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेगा। तो जब वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बेच रहा है एक ही मार्केट में या अलग अलग मार्केट में, उसको बोला जाएगा कोर प्रोडक्ट लाइन। द सिंगल प्रोडक्ट लाइन में हैव वन और मेनी ब्रांड्स। अब उनके ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो सेम और सिमिलर है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक दैट इज फार्मा बिजनेस, है ना। तो आप किसी मेडिकल शॉप में चले जाओ, तो अगर आपको फीवर आ गया है और आपने उनको पूछा कि मुझे फीवर की कोई टैबलेट दे दो, तो उनके पास नंबर्स ऑफ ब्रांड्स के फीवर्स के टैबलेट्स रह गए, है ना। फिर उसमें से जो भी आपको पसंद रहेगा या मे बी जो आप क्योर कर सकते हैं आपका डिजीज और फीवर, उसका वो प्रोडक्ट आपको दे देगा ब्रांड के हिसाब से। इसको बोला जाता है कोर प्रोडक्ट लाइन। Now what do you mean डाइवर्सिफाइड? ठीक है, डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या, अलग अलग। तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? Some companies that adopt diversified product line business where different product lines are marketed, है ना। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन बिजनेस यूज कर रही है ताकि वो प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसका एग्जाम्पल वी कैन सी, आई कैन टेक द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर, दैट इज टाटा इंडस्ट्री, है ना। स्टार्ट किया स्टील से, लेकिन आज अगर हम टाटा कंपनीज के बारे में बात करें तो टाटा कंपनी एक ब्रांड के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग सेक्टर्स में है। टाटा स्टील में भी आप उनके बारे में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट टाटा आईटी सेक्टर्स, टाटा फिनेंशियल, ऑटोमोबाइल, रिटेल, इंफ्रा, टेलीकॉम, है ना। तो कंपनी ने क्या किया, अपने आप को एक ही प्रोडक्ट में से अलग अलग प्रोडक्ट में अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है, अलग अलग मार्केट में सेगमेंटाइज कर दिया है। इसको बोला जाता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन। फाइन। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट P, that is product. In the next tutorial series we are going to cover second P, that is price. Thank you so much everybody. Meet you in the next lecture.